Girls, there's a topic called client request. Okay, नाम से मालूम पड़ता है कि you are requesting, the client is requesting something to whom? Server. Okay, the client is requesting. Can you able to see my screen? Yes, sir. Okay. Exam में there is always one question on this for 8 to 10 marks. हमेशा important question है ये. Okay. The topic is called client request. The client is requesting to whom? कोई बताएगा मुझे? Whom the client request? Server. Very good, very good. Server. The client is request to server. So here we are going to learn different methods of client requesting to server. Okay, there are different methods. Okay, how these methods are working and what is the use of this method and when we have to use all these methods. Okay, that is called client request. Okay, so whenever we see any client request, I'll show you one a client request. This is the way we request. Okay, this is the way we request. Just a minute. Okay, this is the way we request. देखो पहला लिखा है get index.html TTP/1.0. There is a connection keep alive. There is a user agent Mozilla window network. There is a host. Host मतलब आपके कंप्यूटर का नाम आएगा उधर. Accept. Okay. Then the server will respond like this. Server will give the HTTP version. This is the status code. Okay. Okay. There are around 600 codes in website. Each code has certain meaning. तो पूरा हम लोग देखेंगे. Maybe I'll teach you on next session. Status codes. Server response like that key. This is the date. This is the content came from the server. जो कंटेंट मैंने भेजा उसका लास्ट डेट मॉडिफाइड ये था. दिस इज द टाइप ऑफ द कंटेंट, दिस इज द लेंथ ऑफ द कंटेंट एंड द कंटेंट, द बॉडी ऑफ द कंटेंट. ओके, दिस इज द वे द सर्वर रेस्पॉन्स. ओके, यू गॉट आइडिया. तो सर्वर ऐसा रिक्वेस्ट करेगा और सर्वर ऐसे क्लाइंट ऐसा रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर ऐसा रेस्पॉन्स करेगा. ओके, विल सी व्हाट इज दिस क्लाइंट रिक्वेस्ट. आराम से. द क्लाइंट रिक्वेस्ट आर ब्रोकन इनटू 3 सेक्शंस. ओके, जो क्लाइंट रिक्वेस्ट है मैंने बताया आप लोगों को, देखो 3 पार्ट में बटा हुआ है. दिस इज द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द सेकंड पार्ट एंड दिस इज द थर्ड पार्ट. फर्स्ट पार्ट में आपको गेट दिख रहा है, सेकंड पार्ट में नेम ऑफ द फाइल दिख रहा है कुछ, थर्ड पार्ट में HTTP वर्जन दिख रहा है. ओके, चलो देखते हैं क्या है ये. ओके, इट इज डिवाइडेड, योर क्लाइंट रिक्वेस्ट डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. Okay, that is the beginning of the first line of the client request. The method has server the purpose of the client request. जो पहला दिख रहा है method है वो. Okay, जो get दिख रहा था तुम लोगों को, that is a method. Okay, the purpose, the server has the server the purpose of the client request. सर client क्यों request कर रहा है server से, उसका purpose होगा उधर. Okay, there are 3 methods defined for HTML is get, head and post. These are most commonly used method, widely used method. Okay, ज्यादातर लोग 99.99% इसी के लिए यूज करते हैं. या तो गेट मेथड यूज करेंगे या हेड या पोस्ट. डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये. ओके, मोस्ट कॉमनली यूज. देयर आर अदर मेथड्स, आई विल शो यू. गेट, पोस्ट, हेड है. अदर मेथड्स है तुम्हारे सिलेबस में नहीं है तो, बट आई लाइक टू एक्सप्लेन यू दैट. लिंक है, अनलिंक है, पुट है, डिलीट है. Okay, there is an options, there is a trace, there is a connect. These are the different methods of server. Okay, most commonly used methods are get, post and head. Okay, other methods are also defined but they are not widely supported by the server. Methods are case sensitive. Okay, आप कैपिटल में लिखेंगे तो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा, आप स्मॉल में नहीं लिख सकते मेथड को. तो मेथड हैज टू बी अपर केस में लिखना पड़ेगा. आपने अगर आपने स्मॉल लेटर में लिखा, द सर्वर विल नॉट एबल टू रीड दैट. द सर्वर विल हैव डिफरेंट इंटरप्रिटेशन. सर्वर को लगेगा कि कुछ बोल रहा है ये. ओके,
तो ये है. ओके ओके. Let's see what is get method. The get method is a request for information located at a specified URI on server. Get method से आप बोल रहे हैं कि सर्वर में ये फाइल है, मुझे चाहिए. ओके आप पूछ रहे हैं सर्वर को, यू आर रिक्वेस्टिंग फॉर इंफॉर्मेशन लोकेटेड एट अ स्पेसिफाई URL ऑन द सर्वर. आप एक URL दे रहे हैं कि मुझे ये चाहिए. Okay, it is a most commonly used method by browser to retrieve information from the server. सर्वर से कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए तो मोस्टली पीपल यूज दिस. आप लोगों ने फॉर्म में भी देखा होगा, मैंने बताया था फॉर्म में कितने एट्रीब्यूट्स होते हैं. फॉर्म नेम, फॉर्म मेथड, एक्शन. तो मेथड मैंने बोला था कि गेट पोस्ट है कि मेथड में डालना पड़ता है ये. ओके The result of get request can be generated in many different way. Okay, आप get क्या क्या इंफॉर्मेशन सर्वर से मांग सकती हैं आप. फाइल एक्सेसिबल बाय द सर्वर, जो सर्वर यूज करते हैं वो फाइल का इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए. द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम और अ स्क्रिप्ट, सर्वर के पास फाइल है, उसका आउटपुट आपको चाहिए तो यू कैन रिक्वेस्ट दैट. द आउटपुट फ्रॉम द हार्डवेयर डिवाइस, कोई भी देखो आप सर्वर से पूछ सकते हैं कि सर्वर का व्हाट इज द हार्डवेयर डिवाइस. ओके उसका हार्ड डिस्क कितना है, उसका वर्जन क्या है, कहाँ लोकेटेड है. ओके तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी कैन आस्क इन गेट मेथड. सर्वर से क्या क्या पूछ सकती हैं आप. आपको कोई फाइल चाहिए तो सर्वर के पास जो है फाइल मांग सकती हैं आप. द आउटपुट ऑफ अ प्रोग्राम और अ स्क्रिप्ट, अभी तक आपने कोई भी स्क्रिप्ट नहीं किया तो आपको नहीं पता होगा कि क्या है. कोई प्रोग्राम का रिजल्ट आप सर्वर से मांग सकती हैं. आप कोई भी प्रोग्राम का रिजल्ट नहीं मांग सकते, सर्वर स्क्रिप्ट को एक्सेस करता है तो उसका रिजल्ट मांग सकती हैं आप. ओके ओके कोई भी प्रोग्राम का आउटपुट समझो, आप वो सर्वर से मांग सकती हैं आप. ओके और द आउटपुट फ्रॉम द हार्डवेयर डिवाइस, हार्डवेयर डिवाइस से आउटपुट जो भी आएगा वो आप सर्वर से मांग सकती हैं. कभी कभी आपका प्रोग्राम रन करेंगे तो कुछ आउटपुट मैसेज आएगा कि द सर्वर इज नॉट सपोर्टिंग, द हार्ड डिस्क इज नॉट सपोर्टिंग, ऐसा कुछ मैसेज आएगा तो वो मैसेज का आउटपुट आपको चाहिए. तो ऐसे सब आप मांग सकते हैं सर्वर से. ओके व्हेन अ सर्वर यूज द क्लाइंट मेथड गेट मेथड इन इट रिक्वेस्ट द सर्वर रिस्पॉन्स विथ इन अ स्टेटस लाइन. सर्वर रिस्पॉन्स करेगा, हेडर भी देगा और रिक्वेस्ट डेटा भी देगा आपको. सर्वर क्या क्या देगा, सर्वर स्टेटस लाइन देगा, हेडर देगा, रिक्वेस्ट डेटा देगा आपको. फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे हमने देखा, देखो यहाँ पे ओके सर्वर क्या देगा, उसका वर्जन देगा और स्टेटस कोड देगा. ये 200 क्या है, सक्सेसफुल, आपने जो मांगा मैं दे रहा हूं, दैट इज 200. देयर इज अ कोड कॉल्ड 501, सर्वर एरर 501. अगर आपको 501 आएगा और आपको फाइल नहीं मिलेगा उसका मतलब है कि सर्वर में कुछ प्रॉब्लम है. 504 फाइल नॉट फाउंड, सर्वर के पास वो फाइल नहीं है. ऐसे अलग अलग कोड है, सर्वर अलग अलग कोड देगा, सर्वर के पास अलग अलग कोड है. देयर आर 600 कोड्स. ओके मैं नेक्स्ट लेक्चर पे लूंगा वो कोड, वो आपको एक कोड देगा. अभी 200 का कोड का मतलब क्या है, आपको फाइल में भेज रहा हूं, योर रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल. ओके ये है. और क्या देगा सर्वर, आपको डेट देगा कभी भेजा आपको टाइम, और सर्वर का नाम देगा, और वो फाइल कभी मॉडिफाइड हुआ वो बताएगा आपको. सर्वर का टाइप बताएगा कि कौन सा टाइप का फाइल है, वो जिफ है, HTML है, नॉर्मल टेक्स्ट है. ओके ये पूरा देगा. दिस इज कॉल्ड हेडर इंफॉर्मेशन. आपके फाइल का हेडर इंफॉर्मेशन देगा. कंटेंट लेंथ 2482, साइज का क्या है फाइल का, और बाद में वो आपको फाइल भी देगा. ओके ओके ये है, ये बताया कि द सर्वर विल रिटर्न द स्टेटस लाइन, द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल विच यू वांट एंड द रिक्वेस्ट डेटा. आपको डेटा भी मिलेगा. इफ द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस द रिक्वेस्ट ड्यू टू लैक ऑफ एरर ऑफ ऑथराइजेशन. देखो सर्वर में कभी कभी कुछ ऐसा होता है कि फाइल्स होते हैं जो यूजर पासवर्ड डालेगा तो मिलेगा, अगर यूजर उसको एक्सेसिबल नहीं कर सकता तो नहीं मिलेगा.
और यूजर एक्सेस कर सकता है तो मिलेगा। कुछ फाइल ऐसे होता है कि उसके लिए वी नीड पासवर्ड, वी नीड परमिशन फ्रॉम अथॉरिटी। कोई अगर कोई कंपनी का सर्वर एक्सेस करते हैं आप, तो सर्वर कंपनी का देयर आर सर्टेन डेटा हिडन, तो उसके लिए आपको एडमिन का परमिशन लेना पड़ता है, अथॉरिटी का परमिशन लेना पड़ता है। तो ऐसे टाइप पे वो फाइल नहीं देगा, आपको एरर मैसेज देगा कि फाइल एरर नंबर 520। उसका मतलब क्या है, तो लिख के भी देगा आपको कि लैक ऑफ ऑथराइजेशन, यू नीड परमिशन टू एक्सेस दिस। अगर आपका बॉस, अगर आपका एडमिन आपको परमिशन देता है, तो आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा आपको बॉस को या आपके एडमिन को। इफ यू गिव द परमिशन तो आप अगेन डाउनलोड करो तो आपका हो जाएगा। The servers will usually send a textual explanation in the data portion of the response. आपको ऐसा बताएगा ये डेट, ये टाइम, ये टाइप, ऐसा आपको एक टेक्सचुअल इंफॉर्मेशन देगा। Okay, the entity body of the portion of the GET request is always empty. GET is basically used to say, give me this file. Okay, the file or program the client is usually identified by its full path or the server. देखो अभी एक बार देखो आप रिक्वेस्ट कैसे करते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। आपने बोला गेट एंड दिस इज द फाइल आई वांट, तो index.html आपने मांगा और ये अपने वर्जन नेक्स्ट इज अ वर्जन। ओके, समझा आपको? इसमें कुछ नहीं समझा तो मुझे बताओ प्लीज, आस्क मी। कुछ नहीं समझा पैराग्राफ में गेट मेथड क्या होता है, किसी को कुछ पूछना है तो यू कैन आस्क। ये कोई भी पैराग्राफ में किसी को कुछ डाउट है प्लीज आस्क। तो गेट क्या होता है, कोई मुझे बताएगा गेट क्या होता है? हेलो हेलो गर्ल्स, कोई मुझे बताएगा गेट क्या होता है? अच्छा, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइंट रिक्वेस्ट वी हैव, कोई बताएगा? Get, post. हाँ, गेट, पोस्ट, हेड, दिस आर द Head. कॉमनली यूज्ड मेथड। कोई और भी है इसके और भी मेथड्स हैं? Yes, sir. लिंक, Link, पुल, unlink, yes, sir. delete, yes, very good. Unlink, तो ऐसे है। trace. तो गेट मोस्टली क्यों यूज करता है यूजर, क्लाइंट की यूज करता है? To retrieve any information from server. वेरी गुड, टू रिट्रीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम दी सर्वर। सर्वर के पास कुछ फाइल है वो आप मांग रहे हैं। ओके, और सर्वर क्या क्या देगा? सर्वर देगा स्टेटस लाइन देगा, सर्वर देगा हेडर देगा, सर्वर आपको जो डेटा आपने मांगा वो देगा। अगर स्टेटस लाइन में सर्वर ने बोला कि 200, मतलब आपको डेटा दे रहा हूँ, सर्वर दे रहा है, दैट इज सक्सेसफुल। ओके, अगर कुछ एरर है तो एरर नंबर देगा वो। मैं आपको एरर कोड सब बताने वाला हूँ बाद में नेक्स्ट लेक्चर पे। वो एरर नंबर देगा। एरर नंबर देगा मतलब कुछ एरर ऐसे है कि आप वो फाइल एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एडमिन का या ओनर का परमिशन लगेगा। ऐसा आपको पूरा लिख के देगा वो पूरा। ओके, और जब भी भेजेगा आपको डेटा भेजेगा ये फाइल। ओके, और इस तरह से होता है आपका गेट रिक्वेस्ट ऐसे करते हैं और सर्वर ऐसा रेस्पॉन्स करे। ओके, और कुछ पूछना है और कुछ समझा? बस इतना इंफॉर्मेशन लिखना है गर्ल्स, बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता इसको कुछ पढ़ने की जरूरत है। अब याद रखो और लिखो एग्जाम में। ओके, I'll go to next portion, next method called head. Head method. Head method is functionally like get, except that the server will not send anything in the data portion of the reply. गेट में क्या होता है, आपको पूरा हेडर इंफॉर्मेशन देता है और आपको फाइल भी देता है, मगर हेड में आपको सिर्फ हेडर इंफॉर्मेशन मिलेगा। The header method requests only the header information on a file resources. The header information from the head request should be the same as from the get method. Get की तरह ही होगा। आप किसी तरह कोई फाइल मांग रहे हैं आप, मगर यहाँ पे क्लाइंट हेडर इंफॉर्मेशन मांग रहा है। हेडर इंफॉर्मेशन का मेथड, क्लाइंट क्या मांग रहा है, ये फाइल है क्या आपके पास, इसको कभी लास्ट में अपडेट किया,
इसका लेंथ क्या है, कौन सा टाइप का फाइल है ये, कोई बताएगा मुझे? एक क्लाइंट क्यों मांगेगा, क्यों मांगता है क्लाइंट ये, कोई बताएगा मुझे एक क्लाइंट क्यों मांगता है ये? देयर आर मेनी रीजंस। क्लाइंट क्यों मांग रहा है कि ये फाइल का हेडर इंफॉर्मेशन मुझे दो, क्यों मांगता है? कोई कोई एग्जांपल देगा मुझे? व्हाई द क्लाइंट नीड हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द फाइल? तो सर्वर के पास फाइल है, उसका हेडर इंफॉर्मेशन क्लाइंट क्यों मांग रहा है, क्यों मांगता है हेडर? Get the details of the व्हाट टाइप ऑफ डिटेल, व्हाट टाइप ऑफ द डिटेल? The size. whether the file Very exists good, or very not. good. The file size of the file, Yes, the sir. type of the file, Whether file exists or not. file exists or not. वेरी गुड। ऐसे देखो गर्ल्स फॉर एग्जांपल मोस्टली ये मैंने मोस्टली देखा है हार्डवेयर इंजीनियर्स को, whenever they download anything from the server they first check कि कितना टाइम लगेगा उसको डाउनलोड करने के लिए, ओके और किस तरह का फाइल है ये। फॉर एग्जांपल ये हमेशा हार्डवेयर इंजीनियर के पास आदत रहती है, हैबिट है हार्डवेयर इंजीनियर्स का कि ऑलवेज चेक हेडर कि क्या है, उसके बाद डाउनलोड करेगा। मेरे हमारे कॉलेज में जो हार्डवेयर इंजीनियर काम करते हैं उनको मैंने बहुत देखा है, वो पहले हेडर इन्फॉर्म, फॉर एग्जांपल मैंने बोला उसको कि ये फाइल डाउनलोड कर, वो पहला जाएगा, पहला साइज देखेगा कितना टाइम लगेगा डाउनलोड करने के लिए। गर्ल्स क्यों करता है ये? क्योंकि सपोज बेचारे ने कोई फाइल सर्वर में ऐसा होता है कि कोई सॉफ्टवेयर का फाइल कोई भी फाइल डाउनलोड करना है, उसका टाइम लगता है, 2 घंटा जाता है, 1 घंटा जाता है। ओके 1 घंटा उसने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद देखा कि वो सॉफ्टवेयर तुम्हारे मशीन में नहीं है तो रन नहीं होगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर हो, तो उसका 1 घंटा तो वेस्ट हो गया। तो इसके लिए हेडर क्या करता है, इसका हार्डवेयर इंजीनियर पहला डाउनलोड करता है फाइल को और देखता है कि ये चलो ऑटोकैड का फाइल है, अरे ऑटोकैड का फाइल तो मेरे सर्वर में डाउनलोड नहीं होगा, मेरे मशीन में चलेगा क्योंकि मेरे पास ऑटोकैड नहीं है, मैं डाउनलोड नहीं करूंगा। अगर उसने देखा कि ये नॉर्मली वेबसाइट पे कोई भी फाइल ओपन हो जाएगा, या सी का फाइल है या फॉक्स प्रो का फाइल है, ऐसा कुछ है मेरे पास वो कोरल ड्रॉ का फाइल है, ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, मैं डाउनलोड करूंगा तो भी ओपन हो जाएगा, तो वो मेहनत करेगा उसके ऊपर और अपना टाइम वेस्ट करेगा उसके ऊपर। ओके कभी कभी ऐसा होगा कि फाइल का साइज बहुत बड़ा है, मैंने डाउनलोड किया और आपके हार्ड डिस्क में इतना जगह नहीं है, तो वो आधे में रुक जाएगा। इसके लिए वो चेक करेगा, एक बार सर्वर बता देगा कि ये साइज का फाइल है, वो जाके चेक करेगा मेरा हार्ड डिस्क में स्पेस है तो डाउनलोड करेगा, नहीं है तो मालूम पड़ा 1 घंटा डाउनलोड किया, 1 घंटे के बाद बोल रहा है कि देयर इज नो स्पेस इन योर हार्ड डिस्क, गया। ओके कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो फाइल सर्वर के पास है वो बहुत जूना फाइल है, मैंने फाइल को मैंने सपोज फॉर एग्जांपल मुझे सचिन तेंदुलकर का लेटेस्ट इंफॉर्मेशन चाहिए, सचिन तेंदुलकर अभी क्या कर रहा है उसका लेटेस्ट इंफॉर्मेशन, तो मैंने सर्वर से एक फाइल मांगा, सर्वर में मुझे दिया, मैं जाके चेक करूंगा फाइल को क्या हुआ, वो फाइल का डेट का लास्ट अपडेट का भी हुआ है, अगर वो सर्वर ने बताया कि 3 साल पहले का अपडेट है तो मुझे कुछ यूज ही नहीं उस फाइल का, मुझे सचिन आज 3 साल के बाद क्या कर रहा है, आज क्या कर रहा है, तो ऐसे इंफॉर्मेशन सब मुझे मिल सकते हैं हेडर इंफॉर्मेशन से। ओके तो देखो क्या बोल रहा है ये, the head method is functional like a get except that the server will not send anything in the data, आपको फाइल नहीं मिलेगा, उसका हेडर इंफॉर्मेशन मिलेगा। the head method requests only the header information on a file or resources which is located at the server. The header information from the head request should be the same as that of a get request. get की तरह देना है, just method आपको मेथड लिखना है head. This method is used when the client want to find out information about the document and not to retrieve it. Okay, मुझे फाइल ओपन करके नहीं देखना है, मुझे जस्ट फाइल का हेडर इंफॉर्मेशन चाहिए। कभी कभी यूज करेगा ये, द क्लाइंट में डिजायर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, द मॉडिफिकेशन टाइम ऑफ द डॉक्यूमेंट, ओके कभी इसको लास्ट अपडेट किया, द साइज ऑफ द डॉक्यूमेंट, द पेज लेआउट एस्टिमेशन, अराइवल टाइम, डिटर्मिनेशन वेदर टू रिक्वेस्ट अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट। अगर कोई सपोज कोरल ड्रॉ मैंने यूज किया, देखो कोरल ड्रॉ में मुझे कोरल ड्रॉ का फाइल मुझे चाहिए सर्वर से, कोरल ड्रॉ में देखो कोरल ड्रॉ वेरी स्ट्रिक्ट है, आप लोअर वर्जन का फाइल हायर वर्जन में ओपन कर सकते हैं, हायर वर्जन का फाइल कोरल ड्रॉ के लोअर वर्जन में ओपन नहीं कर सकते हैं आप, ये सब प्रॉब्लम है। मेरे पास हायर वर्जन का कोरल ड्रॉ है, मुझे लोअर वर्जन का फाइल मिल गया तो मैं ओपन कर लूंगा,
अगर मेरे पास लोअर वर्जन का कोरल ड्रॉ है, हायर वर्जन का फाइल सर्वर में है, तो आई कैन नॉट एबल टू ओपन। ये सब मालूम पड़ेगा, द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, कौन सा टाइप का फाइल है, ये वर्ड फाइल है, एक्सेल फाइल है, to allow the client to examine only document on a certain time. ओके ये सब इंफॉर्मेशन आपको हेड मेथड में मिलेगा। आपने हेड मेथड रिक्वेस्ट की। चलो गर्ल्स, कुछ डाउट है इसमें? Then I'll go to post. Okay, okay. Next one is post method. Sorry, ये भी टाइप ऑफ सर्वर दैट अलाउड द कस्टमाइज सर्वर क्वेरीज। किस तरह का सर्वर का टाइप है वो भी आप पूछ सकते हैं सर्वर से। देखो उसका ऐसा रहेगा ये। ओके गर्ल्स, पोस्ट मेथड। पोस्ट मेथड मैंने पहले एग्जांपल में फॉर्म में बताया मैंने, पोस्ट मेथड और गेट मेथड दोनों सेम है। बोथ आर इक्वेटिंग डेटा फ्रॉम दिस सर्वर, बोथ यूज टू सेंड डेटा। तो आपको अगर आपको सर्वर में डेटा डालना है तो पोस्ट से डाल सकते हैं आप डेटा सर्वर में। ओके आपको पोस्ट करना है, सर्वर में डालना है कि ये डालो सर्वर में डाल स्टोर करो, तो आप स्टोर कर सकते हैं। ओके और गेट एंड पोस्ट का मैंने फॉर्म में अच्छा एग्जांपल दिया था तुम लोगों को। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं, अगर आपने गेट मेथड यूज किया, जब आप सबमिट करते हैं तो यूआरएल में दिखेगा आपका डेटा जा रहा है। पोस्ट मेथड यूज करेंगे तो यूआरएल में आपको दिखेगा नहीं आपका डेटा जाते हुए, मगर दोनों डेटा भेजेगा सर्वर पे। ओके गेट इज यूज टू सेंड द डेटा, स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा टू द सर्वर। ओके अगर आपको छोटा डेटा भेजना है तो गेट मेथड यूज करो, अगर हैवी डेटा भेजना है आपको पोस्ट में यूज करो। इसके लिए हैवी डेटा जाते हुए यूआरएल में नहीं दिखता है। ओके तो ये मैंने फॉर्म जब सिखाया था तब बताया था मैंने ये हार्डवेयर पैक। ओके ओके द पोस्ट मेथड अलाउ डेटा टू सेंड टू द सर्वर इन द क्लाइंट रिक्वेस्ट। दोनों डेटा में आप बोले गेट में भी डेटा जा सकता है, पोस्ट में भी डेटा जा सकता है। अगर ज्यादा डेटा भेजना है आपको तो पोस्ट मेथड यूज करो। सिंपली कॉन्सेप्ट याद रखो कि अगर आपको डेटा भेजना है तो पोस्ट में डालो, अगर डेटा आपको सर्वर से रिक्वेस्ट करना है तो गेट में डालो, खत्म करो बस। ओके द डेटा इज डायरेक्टेड टू दी डेटा हैंडलिंग प्रोग्राम दैट द सर्वर हैज सक्सेस। जैसे जो आप कुछ भी डेटा मांग रहे हैं, आप कुछ भी सॉरी सर्वर से कुछ भी मांग रहे हैं, आप सर्वर में कुछ भी पोस्ट कर रहे हैं, जो सर्वर आपको डायरेक्टली दे देता है गर्ल्स नहीं, अब दोनों के बीच में देयर इज अ सीजीआई प्रोग्राम। अब दोनों के बीच में एक प्रोग्राम होता है सीजीआई। ओके कॉमन गेटवे इंटरफेस बोलते हैं। तो आपका डेटा क्या होगा, सीजीआई के पास जाएगा। ये पूरा सीजीआई का एक पूरा चैप्टर है हम लोगों के पास, वो भी मैं खत्म करूंगा। मे भी हो सकता है कि नेक्स्ट वीक में वेडनेसडे में ले सकता हूँ ये सीजीआई का प्रोग्राम का। एक सीजीआई का प्रोग्राम होता है। ओके सीजीआई का एक पूरा प्रोग्राम है। ओके एक पूरा कॉन्सेप्ट है, मैं बताऊंगा, एक लेक्चर पूरा मेरा सीजीआई में जाएगा। सीजीआई इज मिडवे बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। अब जो भी रिक्वेस्ट करेंगे सीजीआई के पास जाएगा, सीजीआई देखेगा, चेक करेगा कौन सा कंप्यूटर से आया, कौन सा फाइल चाहिए आपको, फिर सर्वर को भेजेगा। सीजीआई कोड हेडर ऐड करेगा, फिर सर्वर को भेजेगा। फिर सर्वर सीजीआई को भेजेगा। सर्वर कुछ फाइल अटैच करेगा और हेडर इंफॉर्मेशन डालेगा, फिर सीजीआई को भेजेगा। फिर सीजीआई पूरा चेक करेगा, सीजीआई फिर क्लाइंट को भेजेगा। डायरेक्ट आप सर्वर से कांटेक्ट नहीं कर सकती। अगर सर्वर से कोई भी कांटेक्ट करेगा डायरेक्ट तो गया सर्वर, उसको बहुत कुछ कर सकते हैं आप। इसके लिए जैसे सीजीआई प्रोग्राम आपने सुना होगा, सर्वलेट भी है तुम लोगों को। ओके 5-10 मार्क आता है वो भी। तो सर्वलेट प्रोग्राम ऐसा है जो एक सीजीआई है, सर्वलेट कैसे काम करता है वो सब आप देखेंगे, वो सब है। और लास्ट टॉपिक है मेरा सर्वलेट। ओके तो आपका डायरेक्ट आप जो भी रिक्वेस्ट करेंगे डायरेक्ट सर्वर के पास नहीं जाएगा, और सर्वर भी आपको डायरेक्टली नहीं भेजेगा, सीजीआई से होगा। आपका जो भी कम्युनिकेशन है सीजीआई से होगा। बस इतने याद रखिए। ओके तो ये पोस्ट मेथड कभी यूज होता है, पोस्ट मेथड कभी यूज होता है when there is a network service such as न्यूज ग्रुप पोस्टिंग। अगर आपने एक बुलेटिन बोर्ड बना के रखा है, आपको डेटा डालना है उधर, या आपको नया फाइल डालना है उधर, ऐसे टाइम पे आप पोस्ट मेथड यूज करेंगे। कमांड लाइन इंटरफेस प्रोग्राम, कमांड लाइन इंटरफेस कोई पता है आप लोग, आपने कोई कमांड लाइन यूज किया है अपने अभी तक के करियर में, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर?
कमांड लाइन प्रोग्राम इंटरफेस यूज किया तुम लोगों ने? क्या यूज किया बताओ मुझे। कमांड लाइन इंटरफेस यूज किया आपने? क्या यूज किया आपने? कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसे कमांड लाइन इंटरफेस सपोर्ट करता है? कमांड लाइन इंटरफेस प्रोग्राम। गर्ल्स कौन से प्रोग्राम सीखे अभी तक? Java, C++, C. कमांड लाइन इंटरफेस आपने किया है सिलेबस में? मैंने देखा आपके सिलेबस में। Java, नहीं। ओरेकल, एसक्यूएल प्लस। एसक्यूएल प्लस आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। आपके पास एक डेटाबेस है, आप क्वेश्चन पूछो आंसर देगा। आप क्वेश्चन पूछते हैं राइट, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर फ्रॉम दिस फाइल, आपको एम्प्लॉय नंबर मिल जाता है। सेलेक्ट, अपडेट, डिलीट, आप कमांड देते हैं, आपको आंसर मिलता है। ओके, दिस इज कॉल्ड कमांड लाइन इंटरफेस। उसी तरह सर्वर में आप डेटाबेस रखकर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं क्लाइंट से। क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। टेक फॉर एग्जांपल रेलवे रिजर्वेशन, आप रिक्वेस्ट भेजते हैं रेलवे रिजर्वेशन को, ए डेट में मुझे टिकट चाहिए, तो आपको बताता है कि टिकट खाली है, तो फटाफट आपको भरना पड़ता है, भेजना पड़ता है। दिस इज अ कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, आप जैसे फॉर एग्जांपल 10th का रिजल्ट, आप सीट नंबर डालते हैं, एंटर करते हैं, तो आपको रिजल्ट देता है सर्वर। ओके, दिस इज कमांड लाइन इंटरफेस। आप क्वेश्चन पूछते तो सर्वर आंसर देगा। ओके, ऐसे प्रोग्राम बहुत है। ओके, बहुत जगह यूज होते हैं। अगर मुझे मेरा LIC का प्रीमियम भरना है, मुझे डेट चेक करना है, मैं डायरेक्ट जाऊंगा, LIC का प्रीमियम नंबर डालूंगा, एंटर बताएगा मुझे डेट, मेरा इतना पैसा जमा हुआ है और मेरा डेट है प्रीमियम भरने का, सब बताएगा मुझे। आजकल सब ज्यादातर कमांड लाइन इंटरफेस यूज करते हैं। सर्वर में डेटाबेस होगा, क्लाइंट क्वेश्चन पूछेगा। ऐसे में मेथड यूज कर सकते हैं, पोस्ट मेथड। एनोटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द सर्वर। ओके, सर्वर के अंदर कुछ डॉक्यूमेंटेशन डालना है आपको, तो आप पोस्ट मेथड यूज कर सकती हैं। डेटाबेस ऑपरेशन, डेटाबेस ऑपरेशन मतलब आप डेटाबेस के कोई भी ऑपरेशन यूज कर सकती हैं। डेटाबेस में मुझे इंसर्ट करना है, डेटाबेस सर्वर में रखो और क्लाइंट से एक पोस्ट करो, रो ऐड करो, कॉलम मॉडिफाई करो, अपडेट करो डेटाबेस को, डिलीट करो डेटाबेस को, पूरे DML कमांड यूज करो, पूरे DCL कमांड यूज करो। ओके, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज याद है, डेटा DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, उसमें क्रिएट कर सकते हैं आप डेटाबेस, अपडेट कर सकते हैं डेटाबेस, डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस। ये सब डेटाबेस ऑपरेशन आप पोस्ट मेथड से कर सकते हैं। कुछ समझ रहा है गर्ल्स? तो ऊपर से yes sir. ओके, No, ये sir. सब गर्ल्स एक रफ आइडिया बता रहा हूं कि ये सब कर सकते हैं आप, पोस्ट मेथड से कर सकते हैं आप। ओके ओके, Yes, sir. ये सब कहाँ जाएगा? ये सब CGI के पास जाएगा, CGI आपको कन्वर्ट करके पूरा करेगा, सर्वर डायरेक्टली सर्वर के पास नहीं जाएगा। तो ऐसे होता है उसका फंक्शन। ओके, अभी तक एग्जाम में कभी अदर मेथड आया नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूं कि अदर मेथड्स क्या है। एक तो लिंक है, अगर आप लिंक यूज करते हैं तो ये रिक्वेस्टिंग हेडर इंफॉर्मेशन है। सो लिंक मतलब क्या है कि मैं बोल रहा हूं सर्वर को कि ये फाइल के साथ आप हेडर इंफॉर्मेशन भी अटैच करके भेजो। और लिंक मतलब सिर्फ फाइल भेजो, बाकी सब निकाल के भेजो। पुट मतलब मेरा आपके पास ऑलरेडी है, मेरा फाइल है, उसके पास और एक भी मुझे और मैं डेटा भेज रहा हूँ, ये ऐड करके डालो उसमें। डिलीट मतलब ये फाइल सर्वर से निकालो। ऑप्शन मतलब स्टार, मेरे फाइल को एक्सेस करने के लिए मैं क्या क्या, देखो कभी कभी कोई फाइल डालता है तो उसमें बहुत ऑप्शन डाल के डालता है, रीड ओनली, राइट ओनली, व्यू ओनली, एडिट ओनली, ऐसे अलग अलग ऑप्शन है। तो हर फाइल का मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास क्या ऑप्शन है। ट्रेस, ट्रेस का मतलब क्या है? डिबगिंग, आप एरर चेक कर सकते हैं। मैं सर्वर में एक फाइल, आप सी का प्रोग्राम करके अपने सर्वर में उसको डाल सकती है और सर्वर से आप एरर चेक कर सकती हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड ट्रेसिंग, वो कर सकती हैं आप। कनेक्ट, आप डायरेक्ट सर्वर को कनेक्ट करना है तो आपको सर्वर को बोलना पड़ेगा आई वांट टू कनेक्ट, तो सर्वर बोलेगा यस, नो आई एम फ्री, यू कनेक्ट। जब तक सर्वर कनेक्शन नहीं देगा आप नहीं कर सकती हैं। आजकल ये बहुत फास्ट हो गया, पहले जमाने में टाइम लगता था ये सब।
ओके, तो दिस आर सम ऑफ द मेथड, ये सब मेथड है क्लाइंट रिक्वेस्ट के। ओके गर्ल्स, कुछ है जो मैं अब यू वांट मी टू रिपीट? मुझे लगा मैं No, फास्ट sir. जाऊंगा, मुझे लगा मैं फास्ट जाऊंगा तो और एक टॉपिक, छोटा टॉपिक कवर करूंगा, मुझे नहीं लगता टाइम है। ओके गर्ल्स, कुछ पूछना है तो गर्ल्स पूछो। गर्ल्स, तुम्हारा यूनिट टेस्ट 25 को हो सकता है और मैं तुम लोग को एक फाइल भेजूंगा, सब जो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुमको पूरा एक फाइल बना के व्हाट्सएप में डालूंगा। आप उसको जो तरह से यूज करना यूज करो, लैपटॉप में डाल के प्रैक्टिस करो, ईमेल में ले लो, पढ़ो, या उसका प्रिंट आउट निकाल लो अपने लेवल पे। आपको पूरा क्वेश्चन एक फाइल में डाल के मैं भेजूंगा। ओके, एक दो दिन में भेजूंगा। Okay, sir. 25 से तुम्हारा यूनिट टेस्ट होगा। इट विल बी अ मल्टीपल चॉइस, there will be 25 question. Okay, 25 questions होंगे उसमें। Sir, हाँ बोलो। sir, in multiple choice, we won't have any practical questions, right? सब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हमने सिखाया वो पूरा हो सकता है क्वेश्चन। प्रैक्टिकल मतलब प्रैक्टिस, आपको देखो ऐसा बोल सकता हूँ मैं प्रैक्टिकल में, जैसे व्हाट इज द कमांड यू विल यूज टू बोल्ड अ टेक्स्ट, और नीचे ऑप्शन दूंगा मैं BI EMP ING, तो कौन सा ऑप्शन राइट है? ओके, आप तुम लोग को मैं सैंपल, मेरे सब्जेक्ट में तुम लोग को सैंपल भी दूंगा मैं कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। Okay, sir. Yes, sir. और गर्ल्स Okay. याद Yes, रख sir. लो, गर्ल्स याद रख लो, मल्टीपल चॉइस इतना आसान नहीं है। मोस्टली गवर्नमेंट एग्जाम्स देखो, ज्यादातर मल्टीपल चॉइस होते हैं, बहुत टफ होते हैं। मल्टीपल चॉइस का भी आंसर दे सकते हैं तुम लोग जब तुम लोग को पूरा थरो आता है, पूरा पोर्शन। ओके, Yes, sir. आई विल सी दैट, Yes, sir. आई विल सी दैट कि मैं पूरा पोर्शन नहीं रखूंगा, पर्टिकुलर पोर्शन रखूंगा, पूरा एंटायर पोर्शन नहीं रखूंगा। जो अब जितना मैंने सिखाया, सपोज मैंने 100% अभी तक सिखाया मैंने, उसका 75% पोर्शन रखूंगा मैं पूरा नहीं रखूंगा। और आपको आप मेथड भी बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नोट्स भी दे दूंगा मैं। ओके, और फिर बाद में एक आपको एक चाहे तो मैं एक असाइनमेंट कुछ रखूंगा या कुछ प्रोग्राम दूंगा जो आप लोग करके दो, मुझे आउटपुट निकाल के दो। ओके, एक 2-3 एग्जाम रखूंगा मैं ताकि आपको चॉइस मिले, बेस्ट 3 में से 2 लूंगा मैं। ओके Okay, sir. Yes, sir. ओके, आराम से करो। Yes, sir. ओके, पढ़ाई करो गर्ल्स, आप लोग का ये साल वेस्ट नहीं हो रहा है, ये याद रखो।